کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں کتاب کو یعنی ریحانی کارگل کتاب جو 2 زبانوں میں اور پہلی بار اردو زبان اس کتاب میں درج کی گئی ہے، شاعرانہ مجموعہ ہے. میں محمد باقر صبا صاحب حاجی صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں. سب سے پہلے ہماری اس آرگنائزیشن کی طرف سے یہ جو منعقد ہوا پروگرام، اس پروگرام میں اپنی قیادت دینا قبول کیا. بطور چیف گیسٹ جناب سبھاش گپتا صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل سیشن جج صاحب اور ممبر جموں کشمیر کے پبلک سروس کمیشن کے ممبر، اور آج کے اس پروگرام کو صدارت فرمانے والے جناب ولی محمد اسیر صاحب. میں کشتواڑی صاحب کا دونوں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے رمیش راج کشتواڑی صاحب اور ولی محمد اسیر کشتواڑی صاحب یہ ایک ہی اسکول میں پڑھے ہیں، بلکہ ایک ہی کلاس کے جی ہاں بالکل کلاس میٹ بھی ہیں. تو یہ سبب کبھی کبھی بنتا ہے تو خوشی دل میں امڑتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس کتاب کو لکھنے والے، اس کتاب کے شاعر باقر صبا صاحب پچھلے سال ہجرت کر کے بھی آئے. میں اس ہجرت کے لیے بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ صرف مکہ مدینہ معظمہ کا ہی وہاں حج کر کے واپس نہیں لوٹے، بلکہ ایران سے بھی ہو کے آئے ہیں یہ. اور انہوں نے متواتر 2 مہینے گزارے اور ادبی کچھ میں 2 مہینے کے بعد یہ جب تشریف فرما ہوئے تو سب نے ان کا سواگت کیا، بھرپور سواگت. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے کچھ اچھی دلچسپ چیزیں وہ جو لائی تھیں، ابھی بھی ان کے لیے تحفے بھی لائے تھے. تو میں آج پھر یاد دلاتا ہوں ان کو کہ حاجی محمد باقر صبا صاحب ایک بڑی دلچسپ آدمی ہے اور بہت سادہ، اتنی سادگی. اور ایک اور خاص بات کہ کوئی ان کی عمر پہچان نہیں سکتا. کبھی پوچھے تو صحیح کہ ان کی عمر کیا لگتے ہیں کہ شاید 50 برس کے ہوں گے، 48 کے ہوں گے، 55 کے ہوں گے، زیادہ نہ 78 برس کی عمر کے. تو بڑی ایک ہمت. اور ان کی ایک اور بات خاص ہے کہ یہ جموں کے بھی آج باشندے ہیں. انہوں نے بٹھینے میں آپ کا مکان بنا لیا اور بہت اچھا مکان ایک بار بنایا تو ہم تو مکان دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ انہوں نے جو بنایا تھا مکان وہ 2-3-4 سال کے بعد گرا دیا، خود ہی گرایا. اب انہوں نے 3 منزلہ جو مکان بنایا ہے، بہت خوبصورت. اور 2 بیٹے ہیں ان کے، تین بیٹے ہیں اور 3 ہی منزلیں ہیں مکان کی. یعنی جموں میں ان کا اپنا مکان پورا ہے، مکمل مکان ہے. جی جی جی. اچھا، کشتواڑ میں جس طرح کی آب و ہوا ہے اس سے بھی بہتر ہوا یہاں ان کے کرگل کے علاقہ میں ہے. لیکن یہ ایک اور خاص بات کہتے ہیں، کشتواڑ میں کوئی سرحد نہیں ہے جیسے جب وہ یہ سچیت گڑھ یا آپ رجوری پوچھ لے لیجیے. لیکن ان کے گاؤں کے جو کھرول گاؤں ہے ان کے پیچھے تو لڑائی لگی تھی، جنگ لگی تھی 98 کی جنگ. انہوں نے اپنی
मुझे देखिए। और ये इतने दिल वाले हैं कि पूरी देशभक्ति के साथ इन्होंने फौज का साथ दिया है। ये जो कहानी सुनाते हैं जिस ढंग से, जी जी, बड़ी दिल में खुशी और एक उल्लास उभरता है। ये बड़ी हिम्मत वाले भी हैं और तोहमत मजाज भी हैं। इनकी तोहमत मजाजी ये है कि इनकी किताब बन गई थी कोई 1 साल पहले, लेकिन किताब बनने से पहले 4 साल पहले इन्होंने किताब छोटी थी वो तो लिख ली। लिखने के बाद तालब साहब को दे दी कि तालब साहब इसको कुछ करके नजर डालिए ताकि इसको छुपाया जाए। तालब साहब ने देखा किताब को और तालब साहब ने कहा आरिफ साहब ऐसा करिए कि ये जो किताब है ना मैंने देखी है और इसमें कुछ कुछ जो मैंने किया है इसके बाद आप भी इसको नजर डाल दीजिए। चलो ठीक है। किताब मुकम्मल जितने इन्होंने दिए थे वो तो मुकम्मल तौर पर वो किताब छोटी थी, लेकिन जब वापस आए तो कह रहे हैं मैंने कुछ और लाया है तो इसको भी इसमें शामिल करना है। तो ठीक है, अब हमारा तो काम है, अगर वो कहते हैं जिनकी किताब है उनकी बात तो मानना पड़ती है। मैं कहा ठीक है, वो उन्होंने शामिल किया। अब जब वापस जाने लगे तो वापसी तक भी 6 महीने जो रहे यहाँ सेक्रेटरीट की तरह ये भी बदलते हैं, अब जाने वाले हैं। और इनकी वजह से, हालांकि वो हाल जो है एकेडमी का वही हमारा जो प्रोग्राम होना था और हाल में इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ मरम्मत चल रही थी और ये साहब उतावले थे कि मुझे जल्दी वापस जाना है। तो फिर जम्मू में गर्मी ज़्यादा होती है और ये की बात है, जो ठंडे इलाके में रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ रहना मुश्किल होता है। ये बात तो काफी दूर है। अब उनको एकेडमी वालों को मजबूर नहीं किया जा सकता था कि अब आप हमारे इस प्रोग्राम को इस टूटे फूटे हाल में ही करवा दो, तो हो भी नहीं सकता था। लेकिन हाल तलाश करने लगे। हमने कॉलेज का हाल तलाश किया, ये कॉमर्स कॉलेज में कहानी जगह मिली। फॉरेस्ट का तलाश किया, वो उनके पार है लेकिन वो भी हाल हमें नहीं मिला। लेकिन हमारा ये हाल मुझे लगा है कि यहाँ मुझे पता है कि यहाँ लोग कम पहुँचते हैं, लेकिन फिर भी आप सुकून से आराम से यहाँ बैठे हैं, आपको कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं हुई बैठने में। ये कोई रब की तरफ से क्या उस महकमा की तरफ से, मुतल्लिका महकमा की तरफ से भी एक हमारे लिए खुश आइंद बात है कि बिजली बंद नहीं हुई। अगर बिजली बंद होती तो हमने दूसरा इंतजाम रखा है। हमने वो माइक बैटरी वाला हमारे पास है, हमने उसको चालू कर देना चाहिए, पंखे लगा देते, पंखा वो भी चलता है, सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन सबसे अगर कोई देखी जाए बात तो वो है कि जो नेक नीयत से कोई काम शुरू करता है उसकी खुदा अल्लाह ताला तमाम वाहिगुरु मदद जरूर करता है। ये बात पता बहुत बातें हैं ऐसी, लेकिन वक्त बहुत कम है। मैं और बातें इसी सिलसिला की पुष्टि करने के लिए कोई 20 मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, अब वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को शुरू हुए इस वक्त तक कम से कम 1 घंटा शुरू किया हो चुका है। तो मैं अब आधा घंटा प्रोग्राम और चलेगा। तो इसी सिलसिला में मैं आप सबसे पहली बात ये कि सबने जो अग्निकुंज के अरकान हैं उन्होंने आप यहाँ तशरीफ लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दिया है और मैं भी अपनी तरफ से आपका शुक्रिया कर रहा हूँ। आपका यहाँ आना मुबारक है और ख़ास तौर पर जनाब हाजी मोहम्मद बाकर शबा साहब फरोगी का
यहाँ नाम और उनका ये काम, ये किताब को आगरा देना और किताब की यहाँ आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि किताब बनती कैसे है। इन्होंने बहुत कम कहा है, मुझे पता है, आधा तो मैं इनके साथ साथ रहा हूँ ना, कितनी मुश्किल पेश आती है। हाँ। और मैं सबसे बड़ी मुबारकबाद इनकी मैडम को देता हूँ जिन्होंने बर्दाश्त किया है इनको बर्दाश्त किया है, उन्होंने इनकी घरवाली ने बहुत बर्दाश्त किया है इनको, मुझे पता है। ये सबकी घरवाली ऐसी नहीं होती, मुझे पता है। मुझे अपने मन में आना होता है, एक हफ्ते में हमारी हर हफ्ते लगती है, मतलब हमारी निशस्त चलती है, लेकिन उस निशस्त में ये अगले को आपकी जानकारी के लिए कि ये मल्टी लिंगुअल है। कसीर उल सानी ये हमारी तंजीम इसलिए मशहूर है क्योंकि ये 1975 से लेकर आज दिन तक एक भी निशस्त इसकी हफ्तावार, कभी कोरोना से बड़ा कोरोना भी आया तभी नहीं गया, तो हमने दूसरा रास्ता निकाल लिया। हमारी इस वक्त तक 270वीं आज के दिन पर 70 पूरे हुए, 270वीं हमारी वीडियो निशस्त चल रही है और मुकम्मल चले, वो भी साथ साथ है, और वो भी हफ्तावार कब से, कोरोना के दौर से लेकर अब तक 270वीं और बाकायदगी से बिना नागा वो भी जारी है। तो मैं इनके और इनके परिवार को, इनके कुबा के अरकान को, इनका लड़का एक बार आया, वो पता नहीं कैसे पहुंच गया यहाँ, मुझे पता है। अगर किताब है ना, ये जो बन गई है, इसके लिए अब ये जो आपने ये काम किया है ना, इसके लिए ये खर्चा उन्होंने भेजा है, लद्दाख से भेजा। क्या जरूरत थी भाई? कहने नहीं तुम देखो, मैं नहीं नहीं आप आए हो ना, आपको भी पैसे की जरूरत है, नहीं नहीं ना, ये उन्होंने भेजे। तो सवाल ये है कि इनकी फिक्रमंदी, इनकी सादगी और इनकी दूरंदेशी और इनके अदबी खिदमात के वो लम्हात जो इन्होंने मुश्किल से मुश्किल तरीन दौर में भी गुजारे, इनकी गैर मौजूदगी में भी इसलिए करते हैं क्योंकि इनका अच्छा किरदार है। अच्छे ढंग से हमारे यहाँ इस अदबी मुल्क में के बतौर वाइस प्रेसिडेंट लद्दाख यूनिट के ये इस वक्त तक हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमेशा रहेंगे। इनके 2 प्रोग्राम जो मैंने देखे हैं इस करगिल में, इनमें लद्दाख की जो एकेडमी है, कल्चरल एकेडमी लद्दाख की, उस कल्चरल एकेडमी में मुझे भी खैर उनका फोन आ गया था, कहने लगे कि सर ये अदबी कुंज की तरफ से है। मैं कहा हाँ बिल्कुल अदबी कुंज से है, और उन्होंने मंजूरी दी और इन्होंने प्रोग्राम वहाँ करवाया। शोरा हजरात कितने थे अब हैरान हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ से इन्होंने बुलवाए। वहाँ कम से कम 25 के करीब लोग वो शायद इन्होंने वहाँ बुलवाए, पूरे लद्दाख और करगिल में। तो ये इनकी हिम्मत है। तो मैं इनकी अदबी खिदमत की भी तारीफ करता हूँ और इनके पूरे कुबा को मुबारकबाद देता हूँ इस खूबसूरत किताब को इस सूरत तक पहुँचाने के लिए कि आज का दिन मुबारक है। आज इन्होंने अपनी किताब का अजरा करवाया। तो मेरी अब आपसे रुखसत लेते हुए ये गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ लाए हैं। आप इससे बाद कोई ज़्यादा आपको जहमत नहीं देंगे क्योंकि हमने अपने इसको हमारी शायराना नशस्त होगा करती थी, मूसी में कवर किया, उसको दूसरा रूप दिया है। आज सिर्फ किताब को ही रिलीज करना है। मैं नहीं चाहता कि 3 घंटे तक आपका वक्त लिया जाए। अगर हमारे चेयरमैन साहब इस बात को मंजूर फरमाएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं है कि निशस्त करना है। तो बिल्कुल सर, मैं स्वागत करता हूँ
जनाब अजय साहब का मैं स्वागत करता हूँ, जनाब मौलवी मोहम्मद असीम किश्तवाड़ी साहब का स्वागत करता हूँ। आज के इस बारात के दूल्हा जनाब बाकर मोहम्मद बाकर सभा साहब का, और आज की इस निशस्त में जम्मू के नंबर 1 गायक जो गजल के सुपर हिट माने जाते हैं गुलकार, वो नामवर गुलकार भी हमारे यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं, धर्मेश नरगोत्रा साहब। जनाब हमारे जनाब अमीर मलहानी साहब और जनाब रामकृष्ण आबिद साहब, हमारे मनचंदा साहब, राकेश मनचंदा साहब, ये यहाँ तशरीफ फरमा हुए राइटर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। मैं जनाब रमेश राज किश्तवाड़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस किताब से मुताबिक अपना पेपर पढ़ा और बहुत खूबसूरत पेपर पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने अपना पेपर पढ़ा है। मैडम यहाँ नसीम फोजिया